Assalamualaikum students. Today we will do the reading of Unit 7 Lesson 3, The Magic Bottle. This is a story of two characters named Poor Woman and the Genie. Okay. So according to the story, once there was a poor woman lived in a storm drain pipe. Do you know what is a drain pipe? Drain pipe is used in a sewerage system. अच्छा जी, ड्रेन पाइप एक ऐसा सीवरेज सिस्टम होता है जहां से घरों का इस्तेमाल शुद्ध पानी और बारिश का पानी गुजर कर जाता है. So one day the woman was collecting some rubbish in which she found a blue glass bottle. A blue glass bottle. When she rubbed it with her brows, a genie appeared and asked her that what is your wish? Genie appeared and asked the woman that what is your wish? First the woman became frightened, but then she thought about her drain pipe. So she demanded a wooden hut. Okay. After that the woman became greedy and demanding more and more houses with more and more facilities. ठीक है. जिसके बाद जीनी ने उनसे कहा कि आप लालच मत करें, जिस पर औरत ने शाउट किया कि मैं लालची नहीं हूँ. And after that the genie disappeared and the bottle also. And she was again standing in front of drain pipe. तो प्यारे बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है. Okay? As you have heard, greed is a curse. Okay? I hope you have understood the story. Now we will start the reading of the story from book, but before reading I want to tell you about the difficult words you will find in the story. So the first one is magic, special power, judge, drain, remove liquid, nikasi aag, storm, rainy weather, tufani मौसम, frightened, afraid, खौफजदा, thought is the second form of think. Okay. English meaning is consider, Urdu meaning is सोचना. Disappear, not visible, गायब हो जाना. Please, excited, खुश होना. Greedy, selfish, लालची. Different, not the same, मुख्तलिफ. Villa, a modern home, बंगला. Far away, दूर. Hut, a wooden house, झोंपड़ा. Rub, move gently, रगड़ना. चलिए बच्चों, अब आप बुक्स ओपन करें और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बुक. ओके. Okay, dear students, after the brief explanation of story on whiteboard, now we are going to read the story from book. So kindly open your books, page 34. Okay. Okay, on page 34 we have Unit 7, Lesson 3, Reading. The Magic Bottle, Part 1. As I have told you that we have two parts of the Magic Bottle, Part 1 and Part 2. Okay, so in Part 1, question number 1 is read the story and answer the questions. हमें कह रहे हैं कि आप स्टोरी पढ़ लें और फिर उसके बाद इस सवाल का जवाब दें. तो हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डिड द वोमेन मूव हाउसेस. कैसे जो है वो औरत घरों को बदलती है, मतलब घरों को मूव करती है. एक घर में रहती है फिर दूसरी घर में चली जाती है. तो चलें अब हम बुक से इस स्टोरी को रीड करते हैं. There was once a woman who lived in a storm drain pipe. जी, तो एक औरत जो है वो रहा करती थी एक ऐसे पाइप में जिसमें तूफ़ानी बारिश का पानी अभी आता था. मतलब देखिए, मैंने आपको बोर्ड पे बताया भी है ना कि ड्रेन किसे कहते हैं. ड्रेन हमारे पास जो है एक निकासी को बोलते हैं, मतलब जहाँ से पानी, जैसे कि देखिए ड्रेन पाइप की अब यहाँ बात हो रही है ना, तो ड्रेन पाइप जो है निकासी है आपका नाला. मतलब देखें जैसे बहुत सारे ऐसे आपने नाले देखे होंगे जिसमें बारिश
का पानी जो है, जब बारिश होती है तो उसमें पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है और बहुत तेज़ी से वहाँ से पानी गुजर कर जाता है। तो ये औरत उस तरह के एक पाइप में रहती थी। यहाँ पर स्टॉर्म का जिक्र इसलिए हुआ है कि जब तूफ़ानी बारिशें होती हैं तो वहाँ से मतलब बहुत तेज़ी से पानी गुज़रता था। वो एक ऐसा नाला होता था, तो वो एक ऐसा नाला था जहाँ से पानी जो है वो काफ़ी तेज़ी से गुज़रता था, चाहे वो फिर बारिश का पानी होता था या हमारे आम रूटीन के यूज़ का पानी होता था। तो वो एक ऐसे ड्रेन पाइप में रहा करती थी। शी वॉज वेरी पुअर एंड ओन्ड वेरी फ्यू थिंग्स। ये औरत जो थी ये बहुत ज़्यादा पुअर थी, गरीब थी, एंड ओन्ड वेरी फ्यू थिंग्स, और ये बहुत कुछ मतलब बहुत चंद चीज़ों की मालिक थी। ओन्ड मतलब मालिक होना, वेरी फ्यू थिंग्स वेरी बहुत, फ्यू थिंग्स कुछ चीज़ें। She couldn't stand up inside the drain pipe because it wasn't high enough. वो औरत जो थी वो उस पाइप के अंदर नहीं खड़ी हो सकती थी क्योंकि वो इतना लंबा नहीं था। देखें साथ में आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये जो है वो ड्रेन पाइप है। ये औरत जो थी ये इस ड्रेन पाइप में रहा करती थी, और देखें इसकी इतनी हाइट नहीं है, ये छोटा होता है ना पाइप, तो मतलब हमारी हाइट तो पाइप से ज़्यादा होती है ना, तो हम कैसे किसी पाइप में अंदर खड़े हो सकते हैं। तो ये औरत इस पाइप के अंदर खड़ी भी नहीं हो सकती थी क्योंकि इसकी हाइट इतनी नहीं थी। इन समर इट वॉज़ टू हॉट। समर मतलब गर्मी में वो पाइप काफ़ी ज़्यादा गर्म होता था क्योंकि पाइप तो लोहे का होता है ना, इस तरह की मतलब चीज़ से बना होता है कि जब उस पर धूप पड़ती है तो वो गर्म हो जाता है। इन विंटर इट वॉज़ टू कोल्ड, और विंटर में वो बहुत ठंडा होता था वो पाइप, क्योंकि बारिश भी होती थी। मतलब विंटर में तो आपको पता है बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और वैसे भी सर्दी बहुत होती है, तो जिसकी वजह से सर्दियों में वो पाइप ठंडा होता था और गर्मियों में वो पाइप गर्म होता था। इन द मूनसून द रेन रन इन टू द पाइप, और मूनसून का जब मौसम होता था तो तब देखें बारिश उस पाइप में से गुजर कर जाया करती थी। अब आपको समझ आए, जब बारिश का मौसम होता था तो उसमें से बारिश गुजर कर जाती थी। जब समर का मौसम होता था तो पाइप बहुत गर्म होता था, और जब विंटर होती थी मतलब जब सर्दी होती थी तो पाइप बहुत ज़्यादा ठंडा होता था। ओके। वन डे एक दिन व्हेन द वुमन वॉज कलेक्टिंग रबिश, देखें अब ये इस दिन की बात हो रही है। इस दिन पे देखें वो वुमेन जो है कुछ रबिश इकट्ठी कर रही हैं, कुछ कूड़ा करकट जिसको बोलते हैं ना, वो इकट्ठा कर रही होती हैं। तो क्या होता है, शी सा अ स्मॉल ब्लू ग्लास बॉटल। वो औरत एक छोटा सा जो है नीले रंग का ग्लास का बना हुआ जो बोतल होती है वो देखती है। ठीक है, उसने देखा कि एक छोटी सी बोतल है जो कि शीशे की बनी हुई है। ठीक है, ब्लू कलर की है, नीले रंग की है। शी पिक्ड इट अप एंड rubbed इट अगेंस्ट हर ब्लाउज टू क्लीन इट। वो बॉटल उठाती है एंड रब्ड इट अगेंस्ट हर ब्लाउज टू क्लीन इट, और उसको उठाकर रगड़ती है। रब्ड करना, रगड़ना, इट उस बॉटल को अगेंस्ट हर ब्लाउज टू क्लीन इट, अपने जो जैकेट उसने पहनी होती है, जो ब्लाउज पहना होता है उस पर रगड़ती है और उसको साफ करती है। ठीक है, सडनली अचानक से देयर वॉज आ फ्लैश ऑफ लाइट and a genie appeared from the top of the bottle। अचानक से क्या होता है कि एक रोशनी चमकती है और एक जिन नज़र आता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटल, उस बोतल के टॉप से निकल कर एक जिन आता है। देखें ये औरत जो है वो रगड़ती है उस बॉटल को अपने ब्लाउज़ के साथ। तो देखें एक जिन जो है आपको नज़र आ रहा है, देखें जिन निकल आया है बॉटल से, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पर भी बताया। ठीक है, बनाकर भी। द वुमन वॉज फ्राइटेंड, जो औरत है वो डर जाती है। ठीक है, व्हाट इज़ योर विश, मैंने आपको बताया था ना कि जिनी उनको बोलता है कि बताएं आपकी क्या ख्वाहिश है। आस्क्ड द जिनी, जो जिन होता है वो उनसे पूछता है कि बताओ आपकी क्या ख्वाहिश है। व्हाट इज़ योर विश, आपकी क्या ख्वाहिश है। द वुमेन थॉट साइलेंटली, औरत जो है वो खामोशी से सोचती है। देन शी रिमेंबर्ड द ड्रेन पाइप वेयर शी लिव्ड, उसके बाद जो है वो उस ड्रेन पाइप को याद करती है जिसमें वो रहती है। ठीक है, वो बहुत खामोशी से औरत सोचती है, साइलेंटली खामोशी से, और फिर उसको याद आता है। देन शी रिमेंबर्ड, फिर उसको याद आया कि उसका जो ड्रेन पाइप है जिसमें वो रहती है। आई वुड लाइक आ वुडन हट विद आ
लिटिल फर्नीचर। ठीक है, फिर वो उसको कहती है कि मुझे एक छोटा सा लकड़ी का झोंपड़ा चाहिए जिसमें जो है वो बहुत थोड़ा सा मामूली सा, मतलब बहुत एक कम फर्नीचर के साथ, मतलब मेरी ज़रूरत का फर्नीचर हो उस पे। फर्नीचर जैसे बेड हो गया, एक कुर्सी हो गई, एक मेज़ हो गई, इस तरह से वो उसको बोलती है कि एक इस तरह का मुझे झोंपड़ा दे दो जिसमें जो है वो मैं रह सकूँ ना, उसमें बहुत थोड़ा सा फर्नीचर हो। ठीक है। अच्छा, फिर जिनी क्या कहते हैं, इट शैल बी डन, ये हो जाएगा। ओके, सेड द जिनी, जिनी उसको बोलते हैं कि इट शैल बी डन, ये हो जाएगा। इफ़ यू नीड एनी थिंग, अगर आपको कुछ ज़रूरत हो, एल्स, इसके अलावा, रब द बॉटल, इस बॉटल को आपने रगड़ना है, एंड आई शैल अपीयर अगेन, और मैं दोबारा से हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है। देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, उसके बाद जो है वो रोशनी की एक चमक नज़र आती है, एंड द जिनी डिसअपेयर्ड, और जो जिन होता है वो गायब हो जाता है। द वुमेन फाउंड हर सेल्फ इन ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, जो औरत होती है वो ख़ुद को एक अलग शहर के एक अलग हिस्से में पाती हैं। मतलब वो जब जिन गायब हो जाता है तो उसके बाद वो औरत जो है ख़ुद को एक अलग ही जगह में पाती है। मतलब वो ड्रेन पाइप ऐसा कोई इलाका उस टाइम नहीं होता, वो एक अलग सी जगह में होती है, एक शहर के एक मुख्तलिफ हिस्से में ख़ुद को पाती है। शी वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड अ लिटल वुडन हट, एंड शी वॉज स्टिल होल्डिंग द ब्लू ग्लास बॉटल इन हर हैंड। उसके बाद क्या होता है कि वो खड़ी होती हैं एक छोटे से लकड़ी के झोंपड़े के सामने। ठीक है। उसने बोला था ना जिनी को कि मुझे एक छोटा सा लकड़ी का झोंपड़ा चाहिए, तो कहते हैं वो उसी के बाहर खड़ी होती हैं, एंड आउटसाइड मतलब उस झोंपड़े के बाहर, एंड शी वॉज स्टिल, और उसके पास उसी तरह वो ब्लू ग्लास बॉटल उनके हाथ में होती है। ठीक है, उन औरत के हाथ में होती है। उसके बाद क्या होता है, उसने पकड़ी हुई होती है वो बॉटल। ओके, होल्डिंग मतलब पकड़ना। द वुमेन वॉज वेरी प्लीज एंड विद हर हर्ट, वो औरत बहुत ज़्यादा अपने झोंपड़े से खुश होती हैं। इट वॉज नॉट टू बिग एंड नॉट टू स्मॉल, और वो झोंपड़ा ना ज़्यादा बड़ा होता है और ना छोटा होता है। इट हैड अ बेड रूम, उसमें एक बेडरूम होता है। बेडरूम ऐसा रूम जिसमें हम आराम कर सकते हैं, सोते हैं। एंड अ लिविंग रूम, लिविंग रूम एक ऐसा रूम होता है जिसमें हम लोग बैठते हैं, टीवी देखते हैं, खाना भी खा सकते हैं, मेहमान भी वहाँ हमारे साथ बैठ सकते हैं, वो हमारा लिविंग रूम होता है। मतलब जहाँ हम उठना बैठना करते हैं, एक ऐसा कमरा। एंड देयर वॉज अ स्मॉल किचन टू, और उसमें एक छोटा सा किचन भी उस झोंपड़े में होता है। मैं आपको ज़रा झोंपड़े की पिक्चर बताती हूँ, ये देखें, साथ ही आपके दूसरे पेज पे झोंपड़ा आपको दिया भी हुआ है, जो देखें छोटी सी पिक्चर है। ठीक है, इस तरह का लकड़ी का एक झोंपड़ा जो है वो जिनी उसको देता है। अच्छा, कहाँ थे हम? हाँ जी, ये लाइन, देयर वॉज जस्ट इनफ फर्नीचर, बहुत मामूली सा छोटा, मतलब जितना उस झोंपड़े के अंदर फर्नीचर आ सकता है उस औरत की ज़रूरत के मुताबिक वो उसमें होता है, जैसे कि एक बेड, एक चेयर, एक कुर्सी, एंड अ टेबल, और साथ में एक मेज़। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, शी वॉज हैप्पी फॉर अ ईयर, एक साल तक वो औरत वहाँ खुश थी। बट देन द वोमेन बिकेम टायर्ड, लेकिन उसके बाद वो औरत उकता जाती है, बेजार हो जाती है अपने झोंपड़े से। ऑफ हर हट, उस झोंपड़े, अपने झोंपड़े से उकता जाती हैं। इट वॉजंट बिग इनफ, ना वो झोंपड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। शी थॉट, वो सोचती है ये झोंपड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये तो बहुत छोटा है। इन समर, गर्मियों में, इट वॉज टू हॉट, वो झोंपड़ा बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म होता है। एंड रेन केम, और बारिश भी आती है। थ्रू द होल्स इन द रूफ, छत में जो सुराखें हैं वहाँ से बारिश भी इस झोंपड़े के अंदर आती है। देयर वर टू मैनी फ्लाइज, और जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे मक्खियाँ भी हैं। इनसाइड, अंदर, इस झोंपड़े के अंदर तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भी हैं। एंड टू मैनी, और बहुत ज़्यादा रैट्स, चूहे भी हैं। आउटसाइड, बाहर। ठीक है।
सो वन डे, तो ये सारी खामियां जो हैं ये वो औरत निकालती हैं उस झोंपड़े के। ये झोंपड़ा तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और ये तो जो है वो गर्मियों में जो है वो गर्म होता है, और बारिश भी जो है इसके अंदर से, जो छत में सुराखें हैं वहाँ से बारिश भी आती है, और इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भी हैं, और इसके बाहर बहुत ज़्यादा चूहे भी हैं। तो बस ये सारी खामियां निकालती है और कहती है कि वो इस झोंपड़े से अब बेजार हो चुकी हैं। ठीक है, आपको समझ आई? सो वन डे, तो एक दिन क्या होता है, शी टुक द ब्लू ग्लास बॉटल, वो उसी ब्लू कलर के बॉटल को उठाती है, ग्लास बॉटल को, एंड रब्ड इट हार्ड, और उसको सख्ती से रगड़ती हैं। वही जो जिस तरह पहले उन्होंने अपने ब्लाउज़ के साथ रगड़ा था ना, तो इसी तरह सख्ती से वो उस बॉटल को रगड़ती हैं ताकि वो जिनी जो है वो आ जाए। There was a flash of light and genie appeared, and the genie appeared, और क्या होता है, उसी तरह रोशनी चमकती है, रोशनी चमक कर नज़र आती है, और फिर उसके बाद जो है वो जिन हाजिर हो जाता है। What is your wish, बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है ना। What is your wish, आपकी क्या ख्वाहिश है, asked the genie, वो जिन पूछता है। चलें, now come towards the next page। अच्छा, द वोमेन आंसर, जो औरत है वो जवाब देती हैं, दिस हाउस इज़ नॉट बिग इनफ, ये घर ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई वुड लाइक अ बिगर हाउस, मुझे एक दूसरा बड़ा घर मुझे मतलब देना। आप उनको कहती हैं आई वुड लाइक, मुझे पसंद है अ बिगर हाउस, एक बड़ा घर, विद इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें बिजली हो, एंड रनिंग वाटर, और पानी भी आता हो, एंड फैंस, और वहाँ पानी भी हो और पंखे भी चलते हों, पानी भी आता हो। मुझे तुम एक ऐसा घर दो कि जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ मुझे हों। ठीक है, मतलब एक बड़ा घर हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी हो, पानी भी हो, पंखे भी चलते हों। तो वो क्या कहते हैं, इट शैल बी डन, तो वो जिनी कहते हैं ठीक है ये काम आपका हो जाएगा, मैं आपको सारा कुछ ऐसा ही एक घर देता हूँ जी। said the genie, if you need anything else rub the bottle and I shall appear again। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जिनी उनको वही बात बोलते हैं कि आपको अगर इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आप इस बॉटल को रगड़ें और मैं जो हूँ वो हाजिर हो जाऊँगा। बट डोंट बी ग्रीडी, लेकिन आप लालच मत करें। उनको जिनी बोलते हैं कि आप प्लीज़ लालच मत करें। आप वो जो देखते हैं ना कि पहले तो वो एक ड्रेन पाइप में रहा करती थी, और ड्रेन पाइप से मैंने उनको एक झोंपड़ा लेके दे दिया, अब उसमें वो इस तरह की खामियां निकाल रही हैं, तो वो उनको इस तरह के घर की ख्वाहिश का तो पूरी करने का कह देते हैं कि हाँ मैं कर दूँगा, लेकिन साथ ही उनको नसीहत भी करते हैं कि आप लालच मत करें। ओके, उसके बाद क्या हुआ, देयर वॉज आ फ्लैश ऑफ लाइट एंड द जिनी डिसअपेयर्ड, उसके बाद फिर एक रोशनी नज़र आई और वो जिनी डिसअपेयर हो गया। ओके, वंस अगेन द वोमेन फाउंड हर सेल्फ इन ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, फिर उस औरत ने ख़ुद को एक अलग शहर के हिस्से में पाया। शी वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड अ लार्ज मॉडर्न हाउस, वो एक बहुत ही बड़े घर के बाहर खड़ी थी जो कि एक बहुत मॉडर्न घर था। एंड शी वॉज स्टिल होल्डिंग द ब्लू ग्लास बॉटल इन हर हैंड, और उसके हाथ में वही ब्लू ग्लास जो था वो उनके हाथ में था, और वो ख़ुद को एक अलग शहर में पाती हैं, और वो वहाँ पर देखती हैं कि उनके वो जहाँ पर खड़ी हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा घर है, और वो एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न घर है, और अभी तक उस औरत के हाथ में वो ग्लास था जिसको रगड़ कर वो उस जिन से सारी ख्वाहिशात पूरी करवा रही थी। फिर क्या हुआ, द वमेन वॉज वेरी एक्साइटेड, वो औरत बहुत खुश थी, अबाउट हर न्यू हाउस, अपने नए घर के बारे में। शी वेंट फ्रॉम रूम टू रूम एंड टर्न ऑन ऑल द लाइट्स, वो एक कमरे से दूसरे कमरे में गईं और उन्होंने सारी की सारी जो लाइट्स हैं वो ऑन कर दी, लगा दी।
देन शी टर्न ऑन ऑल द फैंस, फिर वो सारे फैंस मतलब सारे पंखों को ऑन करती है। देयर वॉज अ बाथरूम एंड अ किचन विद हॉट एंड कोल्ड वाटर, फिर वो वॉशरूम में जाती हैं, किचन में जाती हैं, और किचन में उनके लिए गर्म पानी का और ठंडा पानी दोनों आते हैं। मतलब गर्म पानी भी किचन में अवेलेबल होता है और बाथरूम में ठंडा पानी भी अवेलेबल होता है उनको, ठीक है। देयर वॉज इनफ फर्नीचर, उस घर में काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर होता है। एंड द लिविंग रूम हैड अ लार्ज टीवी, और जो लिविंग रूम होता है उनका, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी कि हम वहाँ बैठते हैं, खाना टीवी भी देख सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा रूम होता है, ठीक है, और उसमें उनके पास एक बड़ा टीवी भी होता है लिविंग रूम में। शी टर्न डैट ऑन टू, उनको उस टीवी को भी वो ऑन कर देती हैं, ठीक है, लगा देती हैं। ऑल वेंट वेल फॉर अ ईयर, एक साल के लिए सब अच्छा था। बट देन द वोमेन बिकेम टायर्ड ऑफ हर हाउस, उसके बाद फिर क्या होता है कि वो वमेन उस घर से बेजार हो जाती हैं। द हाउस वॉज टू फॉर फ्रॉम द सिटी सेंटर, वो कहती हैं कि ये घर तो शहर से बहुत दूर है। इट वॉज टू क्लोज टू द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के बहुत करीब है। एंड द प्लेन्स वर टू नॉइजी, और जो जहाज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा शोर होता है। इधर आपको पता है जहाँ एयरपोर्ट होता है वहाँ से आबादी थोड़ी सी दूर होती है, तो इसलिए फिर वहाँ से पर शोर भी थोड़ा सा होता है, तो ये उस बात से भी तंग थी वहाँ। शी डिडंट लाइक क्लीनिंग द हाउस, उनको बिल्कुल नहीं पसंद था कि वो घर की सफाई करती। एंड शी डिडंट लाइक लुकिंग आफ्टर द गार्डन, और उसको ये बात भी पसंद नहीं थी कि वो बाग की सफाई करती। तो देखा आपने डियर स्टूडेंट्स के एक ड्रेन पाइप में रहने वाली औरत जो हैं वो एक झोंपड़े में भी टाइम नहीं गुजार पा रही थी। अब एक बड़ा घर जब उनको जीनी ने दिया तो वो उसमें भी वक्त नहीं गुजार पा रही। तो हमारी जो स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है वो यहीं पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग स्टोरी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ओके, नाउ कम टूवर्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी in lesson 5 page 37. क्वेश्चन नंबर 1, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। आप स्टोरी पढ़ें और फिर क्वेश्चंस जो आपको नीचे दिए हैं उनका जवाब दें। व्हाट डिड द वुमन डू रॉन्ग, व्हाट डिड शी फाइनली लिव। ओके, कहते हैं कि वुमन ने क्या गलत किया और फिर वो आखिरकार कहाँ रही, ठीक है। वंस मोर द वुमन टुक द ब्लू ग्लास बॉटल एंड रब्ड इट हार्ड अच्छा, फिर क्या हुआ। वंस मोर एक दफ़ा दोबारा, फिर से मतलब वंस मोर एक दफ़ा फिर। द वुमन टुक द ब्लू ग्लास बॉटल, वमेन ने उठाया वही ब्लू ग्लास बॉटल को एंड रब्ड इट हार्ड, और उसको सख्ती से रगड़ा। देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट एंड द जिनी अपेयर्ड, फिर से एक रोशनी नज़र आई और वो जिन जाहिर हुआ। व्हाट इज़ योर विश आस्क्ड द जिनी, क्या तुम्हारी ख्वाहिश है, उस जिन ने पूछा। देखें दोबारा वही पिक्चर आपको यहाँ गिवन है और फिर से वो रगड़ती है तो जिन जाहिर हो जाता है। द वुमन आंसर्ड, औरत ने जवाब दिया, आई वॉन्ट अ विला विद एयर कंडीशनिंग एंड सर्वेंट्स एंड आई वॉन्ट अ गार्डनर हु कैन लुक आफ्टर द गार्डन फॉर मी। फिर क्या हुआ कि उसने उनसे बोला, उस औरत ने उसको जवाब दिया कि मुझे एक बंगला चाहिए जिसमें एयर कंडीशंस लगे हों और नौकर हों, मतलब सर्वेंट्स नौकर को बोलते हैं, एयर कंडीशंस जो है वो एक बड़ा बंगला मांग रही थी। तो जाहिर बात है उसमें वो फिर ज़्यादा फैसिलिटीज़ मांग रही थी। जैसे पहले उसने कहा कि मुझे एक ऐसा घर चाहिए कि जिसमें मुझे जिस तरह उन्होंने कहा कि झोंपड़े में सुराखें थीं और झोंपड़ा ठीक नहीं है, मैं झोंपड़े में नहीं रह सकती, तो मुझे एक मॉडर्न घर चाहिए। मॉडर्न घर में उसको एक बड़ा लिविंग रूम भी मिला था, बेडरूम भी मिला था, एक ऐसा किचन और बाथरूम भी मिला था जिसमें गर्म और ठंडे पानी की भी फैसिलिटी थी, बहुत कुछ था, एक बड़ा टेलीविज़न भी था। अब उसकी लालच बढ़ गई और उसने कहा कि मुझे एक विला चाहिए, बंगला चाहिए जिसमें एयर कंडीशंस हों और नौकर चाकर हों ताकि वो काम करें, क्योंकि उसको ना गार्डन की सफाई करना पसंद था और ना उसको जो है घर के काम करना, घर को साफ करना पसंद था। इसलिए वो चाहती थी कि माली हो, इसलिए वो चाहती थी कि नौकर चाकर हों
तो घर की सफाई के लिए और गार्डन की देखभाल के लिए ये सारे काम क्योंकि उसको पसंद नहीं थे, तो वो चाहती थी कि अब मुझे इसके लिए सर्वेंट्स दिए जाएं और एयर कंडीशन भी हो ताकि उसको गर्मी ना लगे। इस तरह मतलब जैसे आपने पीछे देखा कि किस तरह से उसने घरों को बदला और क्यों फिर उन्होंने उस घरों को बदला, ठीक है, उसमें क्या नुक्स उसने निकाले। एंड आई वॉन्ट अ गार्डनर हु कैन लुक आफ्टर द गार्डन फॉर मी, और मुझे एक माली भी चाहिए ताकि वो मेरे बाग की देखभाल करे। लुक आफ्टर करना, देखभाल करना। दिस विल बी योर थर्ड हाउस सेड द जीनी, आई वॉन्ट यू बिफोर, डोंट बी ग्रीडी। जीनी ने उसको कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी खबरदार किया था कि तुमने लालच नहीं करनी, तुम लालच मत करो, और ये अब तुम्हारा तीसरा घर है। आई एम नॉट ग्रीडी शाउटेड द वोमेन, उस औरत ने चीख कर बोला कि आई एम नॉट ग्रीडी, मैं लालची नहीं हूँ। आई वॉन्ट अनदर हाउस, मुझे एक दूसरा घर चाहिए। नाउ, अभी। यू शेल हैव अनदर हाउस सेड द जीनी, गुड बाय। जीनी ने उसको कहा ठीक है, तुम्हारे लिए एक दूसरा घर यू शेल हैव अनदर हाउस, तुम्हारे लिए एक दूसरा घर है। सेड द जीनी, जीनी ने कहा गुड बाय, और जीनी उसको गुड बाय बोलकर, खुदा हाफिज मतलब गुड बाय उसने उसको कहा बाय बोलकर वो उसको चला गया। देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट एंड जीनी डिसअपियर्ड, और फिर एक रोशनी नजर आती है और जीनी गायब हो गया। The woman found herself in a different part of the city, but this time she was standing outside a ड्रेन पाइप। उसने ख़ुद को फिर से एक दूसरे शहर में पाया, बिल्कुल मुख्तलिफ शहर में उस औरत ने ख़ुद को पाया। बट दिस टाइम, लेकिन इस दफ़ा, शी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी थी, आउटसाइड आ ड्रेन पाइप, उसी ड्रेन पाइप के बाहर वो खड़ी थी। एंड दिस टाइम शी वॉज नॉट होल्डिंग द ब्लू ग्लास बॉटल इन हर हैंड, तो और इस दफ़ा अब उसके हाथ से वो जो बॉटल थी उसके पास, जिसको वो रगड़ कर और जीनी को बुला लेती थी, वो भी उसके हाथ से चली गई, गायब हो गई। तो आपने देखा लालच कितनी बुरी बला है, हमें लालच नहीं करनी चाहिए है। हम लोगों को जो हमारे पास होता है, हमें अगर उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर उससे बेहतर मिल जाए तो उस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन ये जो औरत थी, ये एक ड्रेन पाइप से एक मॉडर्न हाउस में चली गई, लेकिन वो उतनी ही उसकी लालच बढ़ती गई और वो नाखुश थी, ठीक है। तो इसलिए लालच हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच की वजह से जो कुछ हमारे पास होता है हम वो भी गंवा देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम जब आपको पता है कि हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से रीड कर चुके हैं, स्टोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो आफ्टर द completion of the story, now this is time to complete the exercises given at the end of part 1 and part 2. Okay, so in the next lecture we will complete our exercises given at the end of the magic bottle part 1 and the magic bottle part 2. Okay.